ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ مایوس ہونا چھوڑیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں نا، ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ بصیرت اور تقویٰ انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا مشکل ہو۔ ایک وقت تو ایسا بھی آئے گا، تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ اب بھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ خاک ہونے سے پہلے پاک ہو جاؤ۔ موت کی سرگوشی کوئی مدھم راگ نہیں، بلکہ چونکا دینے والی ایسی خطرناک گونج ہے جس کی دہشت سے روح تک کانپ اٹھتی ہے۔ اللہ کی گڈ لسٹ میں شامل ہونے کی کوشش کیا کریں، انسانوں کی نہیں، کیونکہ انسانوں کی لسٹ وقت اور مفاد کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ علم طے کرتا ہے کیا کہنا ہے، مہارت طے کرتی ہے کیسے کہنا ہے، طرز عمل طے کرتا ہے کس قدر کہنا ہے، اور دانش مندی طے کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے یا نہیں۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کی اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستانوں میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، جو وفاداری اپنے میٹھے بول اور اپنائیت کے احساس ہی شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ میں نے اشفاق صاحب کو کہا، مجھے نہیں رہنا اب آپ کے ساتھ، آپ مجھ پر غصہ ہوتے ہیں، بس اب میں چلی جاؤں گی۔ وہ بیٹھے مسکرانے لگے، میں نے اور سنائی، وہ پھر سے مسکرانے لگے۔ میں سناتی رہی، وہ مسکراتے رہے، میری ہر بات پر وہ مجھے پیار سے بلاتے رہے۔ پھر مسکراتے ہوئے بولے، جب دل کرے غصہ نکال لیا کریں، مجھ پر ہی نکالنا ہے، آپ کسی اور پر تھوڑی نکالیں گی۔ تب میں ان مردوں کا سوچنے لگی جو چھوٹی سی بات پر عورت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے مردوں کو محبت ہوتی ہی نہیں، ورنہ اگر مرد محبت کر لے تو وہ سب سن کر اپنی ذات کی تذلیل کروا کر بھی محبت پر قائم رہتا ہے۔ ایسی عورت بہت خوش نصیب ہوتی ہے، اور میں انہی میں سے ایک ہوں۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ مرد نام ہوتا ہے اعتبار کا، وہ شخص مرد نہیں ہوتا جس کو اپنی خواہشوں پر کنٹرول نہ ہو، ورنہ ایک حقیقی مرد اپنی خواہشوں کو آگ میں جل جاتا ہے، لیکن محبت کرنے والی عورت سے کبھی بے وفائی نہیں کرتا۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی چاہتا ہے۔ وہ معاشرہ جلد ہی تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے جہاں لوگ صرف اپنی ذات کا نفع سوچتے ہیں۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دیں، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر سب یہی مل جائے گا تو اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا۔ جب ہم اپنے خدا کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے، بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہوتی ہے
वो किसी भी चीज़ की 2 मर्तबा कदर करता है, मिलने से पहले, दूसरा खो देने के बाद। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हों, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। जब दिल टूट जाए तो उठाकर उसी मुसव्विर के पास ले जाओ जिसने उसे बनाया है, क्योंकि उससे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता कि कौन सा रंग कहाँ भरना है और किस धागे से कहाँ पैबंद लगाना है। लोगों से इंतकाम मत लिया करें। बुजुर्ग फरमाते हैं कि ख़राब फल खुद ही दरख्त से गिर जाते हैं। इंसान हर चीज़ के बगैर रह सकता है, लेकिन इंसान अपने दुख अल्लाह को बताए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि अल्लाह ही तो सुकून अता करता है। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम ज़िंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। लौट आओ अपने रब की तरफ। बर्दाश्त के साथ हालात ज़रूर बदल जाएंगे, बस ज़रा अंदर ही अंदर मुस्कुराने की ज़रूरत है। ये एक राज है जो स्कूल यूनिवर्सिटियों में नहीं सिखाया जाता। दुनिया का सबसे मुश्किल काम इस बात की वजाहत करना है कि आप किसी के साथ कितने सच्चे और मुखलिस हैं। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि मजबूत रहते रहते थक जाते हैं। ज़िंदगी के अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, और तब ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ़ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश ना छोड़ो। अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार ही नहीं बल्कि वो ज़रूरत का पुजारी है। हर रिश्ता कहीं ना कहीं तो मान तोड़ ही देता है, और हर ताल्लुक़ कभी न कभी तो भरम खो देता है। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की ज़ात है कि जिसका तो आसरा सदा कायम रहता है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। तरबियत और पालने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपका लहजा, आपका रवैया, आपका अखलाक बताता है कि आपकी तरबियत हुई है या आपको सिर्फ पाला गया है। इज़्ज़त एक अनमोल चीज़ है जिसने मोहब्बत को भी मात दे दी। लोग मोहब्बत के बगैर तो रह सकते हैं, मगर इज़्ज़त के बगैर नहीं। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो ला हासिल से मिलवा सकता है और बुरे को बेहतर बना सकता है। हमारी सोच भी वहाँ नहीं जा सकती, वो जहाँ से वसीले निकाल देता है। किसी के कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखो कि वो पलक झपकते ही नसीब बदल देता है। अभी मौका है, चूँकि अमाल नामे खुले हुए हैं, कलम चल रहे हैं, बदन तंदुरुस्त तवाना है, ज़बान आज़ाद है, तौबा सुनी जा सकती है और अमाल कबूल किए जा सकते हैं। परेशान मत हुआ करो, ठोकर उन्हें लगती है जिन्हें अल्लाह ताला थामना चाहता है। बाबा जी फरमाते हैं, तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले या ना मिले अल्लाह मिल जाता है, और जब अल्लाह मिल जाता है तो सब मिल जाता है। मौत की आखिरी हिचकी तक खुला रहने वाला दरवाज़ा तौबा का है। अगर तुम गलत को गलत नहीं कह सकते तो तुम ग़ुलामी के दर्जे पर हो, और अगर तुम गलत को गलत नहीं समझते तो तुम जहालत के आला तरीन दर्जे पर हो। जो लिबास तुम पहनते हो उसे साफ सुथरा रखो और अपनी सवारियों की देखभाल किया करो, और तुम्हारी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत ऐसी साफ़ सुथरी हो कि तुम जब लोगों में जाओ तो तुम्हारी इज़्ज़त करें। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ़ को उसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं और अपनी तकलीफ़ को आजमाइश। मुखलिस वो नहीं जो मुंह पर भी आपका हो, बल्कि मुखलिस वो है जो आपके पीठ पीछे भी आपका ही हो। सिर्फ़ गलत होने पर वजाहतें नहीं दी जाती। कई बार हम वजाहतें इसलिए देते हैं कि सामने वाला हमें बहुत अजीज़ होता है। बानो आपा कहा करती थी, दिल से उतर जाने वाले लोग सामने खड़े भी रहें तो नज़र नहीं आते। परेशान होने वालों को कभी न कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन
परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में रहते हैं। दुआ इंसान और उसके परवरदिगार के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता है जो अज़ल से अबद तक रहेगा। जिस दिन तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि जो काम तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, इस दिन तुम्हारी बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी। बाज़ औक़ात आप किसी का बुरा सलूक सिर्फ़ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। कहते हैं वक्त के साथ साथ हज़ार ज़ख्म भर जाते हैं, मगर सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। ज़िंदा शख्स की कदर करें। ज़िंदा शख्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाना उसकी कब्र पर फूल रखने से बेहतर है। अगर हमें ये एहसास हो जाए कि हमारे माजी के काम ना होने में कितनी बेहतरी थी तो हमारी बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी। तुम हर शख्स को खुश नहीं कर सकते, भले तुम अपना सुकून किसी के लिए कितना ही बर्बाद क्यों ना कर लो, फिर भी वो शख्स तुम्हारी नीयत या तुम्हारी मुखलसी में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेगा। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक भी दी है तो यकीन रखें नसीब में भी वही डालेगा। इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया ख्यालों की दुनिया होती है, जहाँ वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी सकता है, चाहे वो चंद सेकंड्स की ही क्यों ना हो। जो अंदर से मजबूत होते हैं उनके लिए माफ़ करना मुश्किल काम नहीं, लेकिन जो अंदर से खोखले होते हैं वो बदले की आग में जलते रहते हैं। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। परेशानियां ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। जिसने अपने परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया और जिसने परेशानी को अपने सर पर सवार किया वो टूट गया। जो मिल रहा है तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला तो खूब जानता है।